Good morning, dear students. Hope all is well with you and your family. Today, in this video, I am going to explain chapter number 5 from your science books, and this chapter is mentioned on the page number 33. The name of the chapter is Plants in the Surroundings. In this chapter, we will read about the plants, okay, and what are the different parts of the plant. So let's start the reading. Color the picture of the plant given below. Label its stem, root, leaves, flower, fruit, bud, etc. Okay, students, here a picture is given in which we have to write the parts of plant and also color the picture. So starting with the this part, this part is known as the root, so we have to write here root. The spelling of root are R-O-O-T, root. And this thin slender part is stem, so write here stem, S-T-E-M, stem. These structures are known as leaves, write here leaves, L-E-A-V-E-S. And these fleshy structures are known as fruit, so we have to write here fruit, F-R-U-I-T, fruit. These structures are known as flowers. So we have to write here flower, F-L-O-W-E-R, flower. Okay, these structures are known as bud. So we have to write here bud, B-U-D, bud. These buds are changes into a flower. So I think you know, now you know the meaning, a function of the bud. Bud will be changes or grow into a flower. So students, you also have to color this picture. Roots are always brown in color, so color here brown color. Stem or leaves are always green. Okay, fruits are always red in color, so you have to color here red. And flowers are of different color, so you can color here of your choice. Okay, so let's start the reading. The parts of the plant which remain under the ground is called its root. It means जो जो प्लांट का पार्ट ग्राउंड के नीचे रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रूट. द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अबव द ग्राउंड इज कॉल्ड इट्स शूट. अब ये सारा पोर्शन प्लांट का जो ग्राउंड के ऊपर रहता है उसे हम क्या बोलेंगे, शूट. इट मीन्स शूट में क्या क्या आएगा, स्टेम, लीव, फ्रूट, फ्लावर्स एंड बर्ड्स, ऑल दिस मेक शूट. द शूट कंसिस्ट ऑफ लीव्स, स्टेम, ब्रांचेस, flowers and fruits. Each of these parts has a special job to do. अब जो भी हमने प्लांट के पार्ट्स किए हैं इन सभी का अपना फंक्शन है. सो स्टार्टिंग विद द रूट्स. रूट्स ग्रो अंडर द ग्राउंड सो दे कैन नॉट बी सीन फ्रॉम आउटसाइड. जो रूट्स होती हैं जो वो ग्राउंड के नीचे ग्रो करती हैं, ठीक है, इसलिए हम कभी भी उन्हें देख नहीं सकते अनलेस द प्लांट इज स्टैंडिंग व्हेन वी. ओके, रूट्स होल्ड द प्लांट फर्मली इन द सोइल. जो रूट्स होती हैं वो प्लांट को सोइल में फिक्स करती हैं. थर्ड इज दे हैव टू प्लांट टू स्टैंड अप इवन इफ देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड. क्योंकि जो रूट्स होती हैं प्लांट को फिक्स करके रखती हैं सोइल में, इसलिए जब भी कभी स्ट्रॉन्ग विंड आती है तो तब भी प्लांट हमेशा खड़ा रहता है. रूट्स मूव डाउन इनटू द अर्थ इन सर्च ऑफ वाटर. जो रूट्स होती हैं वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ग्रो करती हैं. क्यों ग्रो करती हैं, क्योंकि वो वाटर की डायरेक्शन में जाती हैं, क्योंकि रूट्स का फंक्शन क्या होता है, वाटर को अब्जॉर्व करना. मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. दे अब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. अब रूट्स का फंक्शन क्या है, वो सोइल से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्व करती हैं. अब क्या है, रेडिश, कैरेट एंड बीट रूट आर सम एडिबल रूट्स. सी, here are pictures of radish, carrot and beetroot are given. These are roots. What these are? These are roots and we are eating these roots. Okay. So next is रूट्स आर ऑफ टू टाइप्स. अब रूट्स कितनी टाइप्स की होती हैं, टू टाइप्स की होती हैं. कौन कौन सी, फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स. अब फाइब्रस और टैप रूट्स में डिफरेंस क्या है, वी विल रीड अबाउट दिस इन दीज टू पैराग्राफ्स. सो स्टार्टिंग विद द फाइब्रस रूट्स. Some plants have many small roots growing from the end of the stem. These roots are called fibrous roots. It means जो plants होते हैं ना, कुछ plant होते हैं उनकी जो, अगर सपोज करो ये stem है ना, इस स्टेम के नीचे क्या होगी, रूट होगी ना. रूट वहाँ पे नीचे ऐसे स्मॉल स्मॉल रूट्स होती हैं, ठीक है. वो स्मॉल स्मॉल रूट्स को हम क्या बोलेंगे, फाइब्रस रूट, ठीक है. सेम, सम प्लांट्स हैव मेनी स्मॉल, सी देयर आर मेनी स्मॉल रूट्स growing from the end of stem. This is the stem.
end of the stem, and from here so many small roots are growing. These roots are called, but these roots are called fibrous root. Okay, these roots are found in grass and wheat. जो वीट प्लांट होता है और जो ग्रास होता है हमारे ग्राउंड में, उन दोनों में कौन सी रूट्स होती हैं? फाइब्रस रूट्स. नाउ टैप रूट्स. सम प्लांट्स हैव ए थिक रूट ग्रोइंग इनटू द सोइल. जो कुछ प्लांट होते हैं उनमें सिर्फ एक ही लॉन्ग थिक रूट होती है. ठीक है, हैव ए मीन्स वन, थिक मीन्स काफ़ी मोटी सारी रूट, ग्रोइंग इनटू द सोइल, सेवरल थिनर रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम दिस थिक रूट. लेकिन जो थिक रूट होती है ना, आगे जाके उसमें से भी छोटी छोटी ब्रांचेस निकलती हैं रूट्स की. लाइक दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टैप रूट. सी हियर इट इज ए थिक लॉन्ग रूट फ्रॉम विच स्मॉलर रूट्स आर अराइज. ओके, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए टैप रूट. दिस मेन थिक रूट इज कॉल्ड द टैप रूट. अब जो ये सेंटर वाली मेन थिक रूट होगी उसे हम क्या बोलेंगे? टैप रूट. सो मैंगो एंड नीम ट्री हैव दिस टाइप ऑफ रूट. सो मैंगो ट्री होता है, जो नीम ट्री होता है, उन दोनों में कौन सी रूट्स होती हैं? टैप रूट्स. नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ प्लांट विच इज अंडर डिस्कशन इज स्टेम. सो स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द शूट. जो शूट होता है, शूट में कौन कौन से पार्ट हमने स्टडी किए थे? कौन कौन से पार्ट थे? स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट एंड बड. और उसमें से जो स्टेम होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट एंड मेन पार्ट होता है. स्टेम हेल्प्स द प्लांट टू स्टैंड इरेक्ट. जो स्टेम होता है वो क्या हेल्प करता है प्लांट की? उसे हमेशा सीधा खड़ा रहने में. इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. अब ये क्या कहता है कि स्टेम हेल्प करता है वाटर और मिनरल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल करने के लिए. लाइक वी हैव रेड दैट जो रूट्स होती थी वो ऑब्जॉर्व करती हैं वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल. फ्रॉम हियर द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम ट्रैवल here through the stem to the different parts like leaves, fruit and flowers. So stem provide a passage for the travel of water and minerals. Next is plants like sweet potato and sugarcane store food in their stems. Okay, now here are the example where food is stored in the stems and we are eating these stems. What are those? Sweet potato and sugarcane. जो sugarcane होती है वो क्या होती है? प्लांट का कौन सा पार्ट होती है? स्टेम, जिसे हम ईट करते हैं. ओके, so here one more thing is a fact. What is that? Neem tree is called the miracle tree. हम नीम ट्री को क्या बोलते हैं? मिरेकल ट्री. क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीम के हमें बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. क्योंकि नीम ट्री मेडिसिनल प्लांट है, इसे हम मेडिसिन बनाने में यूज़ करते हैं. ये एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं मिरेकल ट्री. Here one more thing is given. Blow your mind. That is what are tendrils. We will discuss about this later in this chapter. Okay. Now different plants have different types of stem. जैसे roots are of two types. Same plants have different types of stems. What are these? Trees have a thick and woody stem called trunk. जो बड़े बड़े trees होते हैं, जो बड़े बड़े plants होते हैं, उनकी जो stem होती है वो काफ़ी thick होती है, काफ़ी मोटी होती है और कैसी होती है? वुडी होती है. ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल्ड इट ट्रंक. बट सम प्लांट्स हैव थिन एंड वुडी स्टेम. ओके, थिन एंड वुडी स्टेम. उन प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे? श्रब्स. व्हाट आर दोज प्लांट कॉल्ड? श्रब्स. हियर द स्टेम इज थिक एंड वुडी, बट हियर स्टेम इज थिन एंड वुडी. नाउ द अदर कैटेगरी ऑफ प्लांट इज हर्ब्स. हर्ब्स हैव ए थिन एंड ग्रीन स्टेम. जो हर्ब्स होती हैं उनकी स्टेम कैसी होती है? थिन, पतली सी होती है और स्टेम भी ग्रीन होती है, यहाँ पे वुडी नहीं होती. देन नेक्स्ट लास्ट इज क्लाइंबर. क्लाइंबर्स का मीनिंग क्या होता है? जो किसी और की हेल्प लेके क्लाइंब करें, ऊपर चढ़ें. कुछ प्लांट होते हैं जो अपने आप स्ट्रेट ग्रो नहीं कर सकते, तो हम उसे उनकी हेल्प के लिए कोई भी स्टिक्स लगाते हैं, जैसे कोई दूसरे प्लांट के अराउंड वो उसकी सपोर्ट लेके ग्रो करते हैं. ठीक है, क्लाइंबर्स हैव ए थिन green and very soft stem. Okay, I hope you got that what are the different kinds of stems. So example of trees are
mango tree, neem tree. Okay, example of shrub are rose plant, example of herbs, mint, coriander plants. Okay, example of climbers are money plant. Okay, now moving towards the next part of discussion is leaves. Different plants have leaves of different shapes and sizes. अब क्या बोल रहे हैं कि प्लांट्स के पास जो लीव्स होते हैं उनकी शेप भी अलग होती है और साइज भी डिफरेंट होते हैं. द लीव्स ऑफ नियरली ऑल प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर. जो सभी प्लांट्स के लीव्स होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के. Leaves contain a green pigment called chlorophyll, which help them to make their food. Okay, इट मीन्स जो लीव्स का कलर जो ग्रीन होता है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण. ओके, द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट. द नेम ऑफ द पिगमेंट इज क्लोरोफिल. अब वो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करता है? उनकी हेल्प करता है किसमें? टू मेक देयर फूड. Okay, I am repeating all these things. Different plants have different leaves and the leaves are of different shape and different sizes. So leaves are generally green in color because leaves have a pigment. The name of the pigment is chlorophyll, which help them to make their food. See here the picture of different leaves are given and here the shape and sizes of leaves are different. Okay, here is try to yourself, that is place different types of leaves under a sheet of paper, darken the paper with an HB pencil, you will see the sketch of the leaf. अब यहाँ पे वो एक एक्टिविटी करने को बोल रहे हैं. आपने एक लीव्स लेने, लीफ लेके उनको पेपर के नीचे रख के और उनको ट्रेस करना है. ठीक है, उनके ऊपर पेंसिल के साथ लाइंस लगानी है. ठीक है, जब आप प्रॉपर लीफ के ऊपर लाइन लगाओगे ना, उसके बाद जब लीफ निकाल भी दोगे तो पेपर के ऊपर ना लीफ का पूरा पैटर्न आपको नजर आएगा. ठीक है, ऐसे आपने लीव्स को ट्रेस करके देखना है. नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. हियर वी विल डिस्कस अबाउट द व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. ऑल लीव्स हैव सम बेसिक स्ट्रक्चर्स. लीफ की क्या क्या स्ट्रक्चर होती है? लेट्स सी. फर्स्टली here it is a stalk. What is this? This is a stalk. This is a stomata. We have discussed in the previous chapter. हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि लीव्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर होते हैं जिसकी हेल्प से जो प्लांट हैं वो ब्रीथ करते हैं. उन पोर्स को हम क्या बोलते थे? स्टोमेटा. हेयर स्टोमेटा आर शोन. सो इन द सेंटर ऑफ लीफ इट इज़ ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज ए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. ये क्या करती है? ये जो वाटर होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो उनको ट्रांसफ़र करने में हेल्प करती हैं. उनकी सप्लाई इस ट्यूब से होती है. ठीक है, इस सेंटर वाली ट्यूब को हम क्या बोलेंगे? मेन वेन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? मेन वेन. अब जो मेन वेन है ना, इसकी साइड इसमें से ना साइड में भी ब्रांचेस निकल रही हैं. उन साइड्स को हम क्या बोलेंगे? जो क्योंकि ये साइड पे हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया? साइड वेन. जो सेंटर में है दैट इज द मेन वेन, विच आर ऑन साइड दैट आर side veins. Okay, and this whole part of leaf is called leaf blade. This is the whole part of leaf is called leaf blade, and this tip of leaf is called leaf apex. Okay, now read about these structures. First is the stalk. The stalk attaches the leaf to the bunch टू द ब्रांच ऑफ द ट्री. जो स्टाक होती है वो क्या करती है? लीफ को स्टेम के साथ अटैच करती है. सेकेंड इज द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड. ठीक है, जो ये लीफ का ये फ्लैट और बड़ा सा पार्ट होता है उसे हम क्या बोलेंगे? लीफ ब्लेड. द थर्ड इज इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द मेन वेन. Many side vein branch out from the main vein. On the underside of the leaf are present tiny openings called stomata. क्या बोल रहे हैं कि लीफ के सेंटर में एक वेन होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? मेन वेन. उसकी जो साइड में वेन्स निकलती हैं उसे क्या बोलेंगे? साइड वेन्स. और लीफ की ये दिस इज द अपर साइड ऑफ द लीफ ना, ऑन द लोअर साइड, इसके नीचे लोअर साइड में स्मॉल ओपनिंग्स होंगी, उस ओपनिंग्स को हम क्या बोलेंगे? स्टोमेटा. ओके, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ लीफ. अब लीफ के क्या फंक्शन है? लीफ का क्या काम है प्लांट की बॉडी में? ठीक है, लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए प्लांट. जो लीफ है वो प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. कैसे?
because they prepare food for the whole plant, so they are also called the food factory of the plant. क्यों है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट? क्योंकि जो लीव्स हैं वो पूरे प्लांट के लिए क्या प्रिपेयर करते हैं? फूड, ठीक है। लीव पूरे प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री। That's why leaves are called food factory of the plant. The process by which plant make their food in the presence of air, water and sunlight is called photosynthesis. What is photosynthesis? Photo means light, synthesis means बनाना, ठीक है। कुछ भी चीज़ जो लाइट की प्रेजेंस में बनाना उसे हम क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। हियर बच्चा, जैसे मम्मा किचन में कुकिंग खाना बना रही होती है तो हम क्या बोलते हैं कि मम्मा कुकिंग कर रहे हैं। सेम वे अगर प्लांट अपना फूड बनाएगा तो हम उस प्रोसेस को कैसे क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। जैसे मम्मा खाना बनाती है किचन में तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कुकिंग। वैसे ही हम प्लांट के खाना बनाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस। ओके। और हमें पता है कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं? एयर के साथ, वाटर के साथ एंड सनलाइट के साथ। ओके, सो हियर ए पिक्चर इज शोन इन विच द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज वेरी क्लियरली एक्सप्लेन्ड। सो बच्चा, हमें एक पिक्चर दी हुई है, इसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। हमें पता है कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए थ्री थिंग्स चाहिए होते हैं। क्या क्या चाहिए होता है? फर्स्टली water, second is sunlight, okay, the third is air, that is the carbon dioxide। देखो जो जो प्लांट्स को चाहिए उनमें से ऐसे एरो है ना वहाँ पे, दिस एंड दिस, ऑल दिस थिंग्स आर टेकन बाय द प्लांट। देखो जो वाटर है उन्हें क्या कौन अब्जॉर्व करेंगे? रूट्स के अब्जॉर्व करने के बाद वो स्टेम से होते हुए मेन वेन से होते हुए कहाँ पे पहुँचेंगी? लीव्स में। और लीव्स में क्या होगा? फूड प्रिपेयर होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी यहाँ पे आएगी, प्लांट जो सन की लाइट है वो भी आएगी और प्लांट क्या बना लेगा अपने लिए? फूड, ठीक है। जब प्लांट अपने लिए फूड बनाता है ना, तब वो कौन सी गैस साथ में बना देता है? ऑक्सीजन। और वो तो प्लांट को चाहिए नहीं होती, तो वो ऑक्सीजन कहाँ पे दे देता है? बाहर, एयर में। इसलिए इसका साइन कौन सा है? बाहर वाला, ठीक है। और देखो जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, वो सारी कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है। लेकिन ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? वो रिलीज कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है, ठीक है। आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट इज लीव एक्सचेंज गैसेस थ्रू टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड ऑफ the leaves called stomata. They take in carbon dioxide and give out ऑक्सीजन। हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि प्लांट्स लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते थे, हम उन्हें क्या बुलाते थे? स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते थे? वो प्लांट को ब्रीथ करने के लिए हेल्प करते थे। क्या करने के लिए हेल्प करते थे? ब्रीथ करने के लिए। सो ब्रीदिंग में प्लांट्स क्या करते थे? वो कौन सी गैस अंदर लेके जाते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। वो टेक इन कौन सी गैस करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड। और कौन सी गैस रिलीज करते थे? ऑक्सीजन। ओके। लीव्स लाइक मिंट एंड स्पिनच स्टोर फूड इनसाइड देम। अब क्या बोल रहे हैं? जो कौन कौन से लीफ है? मिंट मीन्स पुदीना, और स्पिनच क्या है? पालक। वो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं और हम प्लांट्स के ये वाले पार्ट्स को ईट करते हैं, ठीक है। हियर पिक्चर्स आर ऑफ मिंट एंड स्पिनच आर गिवन। Now moving towards the next part, that is the flowers. The bud on the stem of a plant changes into a flower. हमने रीड किया कि जो बड थी, these are the buds which will be changes into the flower. अब वही वो बोल रहा है कि जो बड्स होती हैं वो चेंज कर जाती हैं, ग्रो किस में करती हैं? फ्लावर में, ठीक है। फ्लावर्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब वो क्या बोल रहा है कि जो एक प्लांट का सबसे खूबसूरत कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर होता है। अगर किसी प्लांट पे बहुत सुंदर फ्लावर्स होते हैं तो हम उन्हें देख के वो प्लांट की तरफ जाते हैं ना, इसलिए वो सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, शेप्स एंड साइजेस। जो फ्लावर्स होते हैं वो अलग अलग कलर्स के, शेप्स के और साइजेस के होते हैं, ठीक है। सो हियर द पिक्चर ऑफ ए लोटस फ्लावर इज गिवन।
वट आर द फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब जो फ्लावर्स तो हैं प्लांट में, लेकिन उनके क्या काम है। ए फ्लावर ग्रोस इनटू ए फ्रूट। जो फ्लावर होता है ना, वो अब किस में चेंज हो जाता है, किस में ग्रो करता है, फ्रूट में। एक फ्लावर से क्या बनता है, फ्रूट। फ्लावर्स लाइक कॉलीफ्लावर एंड ब्रोकली स्टोर फूड एंड आर एडिबल। अब वो क्या बोल रहा है, हम भी ऐसे फ्लावर्स हैं जिन्हें ईट करते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, देखो इसके नाम में क्या है, फ्लावर, ठीक है। कॉलीफ्लावर और ब्रोकली आर एडिबल पार्ट्स, मीन्स इनमें फूड स्टोर होता है और हम इन्हें ईट करते हैं। सो next is a fact. Here it is a new information is given. The sweet smell of flowers attract insects to the flower. They come to the flower to suck its nectar. अब क्या बोल रहा है, ये जो फ्लावर्स होते हैं जब हम उन्हें स्मेल करते हैं तो हमें एक स्वीट सी स्मेल आती है ना, बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। वो स्मेल क्यों आती है, क्योंकि उनमें एक स्वीट लिक्विड होता है, ठीक है। उस स्वीट लिक्विड को हम क्या बोलेंगे, नेक्टर, ठीक है। जो इंसेक्ट है ना, वो भी उस स्मेल के कारण फ्लावर पे आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो नेक्टर होता है वो ईट करना होता है, वो उन्हें क्या करते हैं, सक करके निकाल लेते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द फ्रूट। अब क्या है, ए फ्लावर चेंजेस इनटू ए फ्रूट। पहले क्या था, बड थी, BUD, बड, दैट विल बी चेंजेस इनटू फ्लावर, and same way flower will changes into a fruit। जब फ्लावर फ्रूट में चेंज हो, सेम देखो यहाँ पे पोमेग्रेनेट का फ्लावर दिया हुआ है, ठीक है। फ्लावर किस में ग्रो करेगा, पोमेग्रेनेट फ्रूट में, ठीक है। अगर हम पोमेग्रेनेट को फ्रूट को कट करेंगे तो हमें उसमें क्या मिलेंगे, सीड। इट मीन्स फ्रूट हैव सीड्स। व्हाट डज फ्रूट हैव, सीड्स। सो फ्रूट्स आर द यूसी एंड फ्लैशी पार्ट ऑफ ए प्लांट। जो फ्रूट होते हैं वो प्लांट का कौन सा पार्ट होते हैं, यूसी, जिसमें बहुत सारा जूस होता है। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स। द नंबर ऑफ सीड्स इन डिफरेंट प्लांट्स इज डिफरेंट, सॉरी, इन डिफरेंट फ्रूट्स इज डिफरेंट। जो एक फ्रूट में कितने सीड होंगे वो अलग अलग होते हैं। जैसे पोमेग्रेनेट में so many seeds are there, but in mango fruit only one seed is there। So papaya, in same way papaya have so many seeds, watermelon also have so many seeds, guava has also so many seeds, okay। So number of seeds within flower are different। So fruits like pineapple and banana have no seeds inside them। और वो क्या बता रहा है, जो जैसे फूड है पाइनएप्पल और बनाना, इन दोनों में सीड्स नहीं होते, ठीक है। अब जब आप नेक्स्ट टाइम इन दोनों को ईट करोगे तो आप देखना ध्यान से क्या इनमें सीड हैं, अगर हैं तो क्या आपको मिलते हैं, ठीक है। नाउ हियर पिक्चर ऑफ पपाया, एप्पल एंड चेरी आर गिवन इन विच seeds are shown। See, papaya have so many black seeds, in the same way apple have so many seeds here and cherry also have so many seeds here। So here is a activity for you, cut open some fruits with the help of your mother or teacher to see the seeds inside them। अब यहाँ पे आपके लिए एक्टिविटी है, आपने फ्रूट्स लेने हैं, ठीक है, और आपने कट करने हैं, क्योंकि अब आप स्कूल तो आ नहीं सकते, तो इसलिए आपने अपनी मम्मा की हेल्प से, खुद नहीं कट करने, मम्मा की हेल्प के साथ फ्रूट्स को कट करना है और उनमें देखना है कि उनमें सीड्स हैं और अगर हैं तो कितने हैं, कैसे हैं, ठीक है। Now here is life skills। Life skills mean good habit is written here। What is that? Eat plenty of fruits, they protect us from seeds। It means हमें बहुत सारे फ्रूट्स खाने चाहिए। क्यों खाने चाहिए, क्योंकि ये फ्रूट्स हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ फ्रूट्स। अब जो फ्रूट्स हैं उनका क्या काम है, वी ईट फ्रूट्स ऑफ प्लांट्स लाइक एप्पल, बनाना, गावा एट्सेट्रा। सबसे पहले तो हम जो फ्रूट्स हैं, प्लांट्स के फ्रूट तो हम खाते हैं, कितने जितने भी हैं। नेक्स्ट इज फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज वेजिटेबल्स, ठीक है। कई ऐसे भी फ्रूट्स हैं जिन्हें हम वेजिटेबल बोल के खाते हैं, जैसे वेजिटेबल मिला के खाते हैं। क्या आप बता सकते हो ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं। सो हियर एग्जाम्पल्स आर गिवन लाइक पम्पकिन, लेडी फिंगर, टोमेटो एंड ब्रिंजल। सो बच्चा, हियर इज वन क्वेश्चन विच यू कैन आस्क नाउ। सो दैट इज हाउ वी
can come to know that which is fruit and which is vegetable. So all fruits have seeds inside them. Okay, all fruits have inside them. जो भी फ्रूट होगा ना उसके अंदर आपको सीड्स मिलेंगे, ठीक है। जो वेजिटेबल्स होंगी उसके अंदर सीड्स नहीं होंगे। लेकिन देखो जब भी हम टमाटो को कट करते हैं तो उसमें तो बहुत सारे सीड्स होते हैं। इट मीन्स टमाटो इज ए fruit. Same way brinjal also have so many seeds. Pumpkin and ladyfinger also have so many seeds. It means all these are fruits, but we eat them as a vegetable. Okay, moving towards the next part, that is seeds. A seed has a baby plant inside it. अब वो क्या बोल रहा है कि जो सीड है ना उसके पास एक बेबी प्लांट है। वो कहाँ पे है? उसके अंदर, ठीक है। तभी तो जब हम सीड को प्लांट करते हैं सोइल में तो उससे न्यू प्लांट आता है। कैसे आता है? क्योंकि सीड के अंदर ही एक बेबी प्लांट छुपा होता है। सो स्ट्रक्चर ऑफ ए सीड। अब हम पढ़ेंगे कि सीड की स्ट्रक्चर क्या क्या है, ठीक है, उसमें कौन कौन से पार्ट। सो द फर्स्ट इज सीड कोट। वट इज सीड कोट? कोट मीन जो क्या होता है, कोट क्या होता है, हम तो ऊपर पहनते हैं ना अपने क्लोथ्स के ऊपर। सेम वे सीड के ऊपर एक कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सीड कोट। क्योंकि ये कोट किसने पहना है? सीड ने। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? सीड कोट। इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड। इट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड द सीड। अब वो क्या बोल रहा है कि जो सीड की आउटर कवरिंग है और इसका काम क्या है? वो इस बेबी प्लांट को क्या करके रखता है? प्रोटेक्ट करके रखता है, बचा के रखता है। सेकेंड इज द सीड लीव्स और कोटिलिडन्स। दैट इज द कोटिलिडन्स। हम कोटिलिडन्स को क्या बोलेंगे? सीड लीव्स। सीड लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द कोटिलिडन्स। अब हम लीव्स को सीड लीव्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीड की लीव्स है ना, इसलिए वी कॉल देम सीड लीव्स। अब सीड लीव्स का क्या काम है? ये इसमें फूड स्टोर होता है। क्या होता है? फूड स्टोर्स। लाइक द कोटिलिडन्स कंटेन स्टोर्ड फूड विच इज यूज्ड बाय द बेबी प्लांट फॉर ग्रोथ। अब ठीक है, जैसे ये बेबी प्लांट है हमारा, जब इसने ग्रो करना होगा तो ये पहले इस फ्रूट को यूज़ करेगा, ठीक है, सॉरी, इस फूड को यूज़ करेगा ग्रो करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसके न्यू लीव्स आएंगे और फिर ये अपना फूड खुद बना सकेगा विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट पार्ट इज इट इज द बेबी प्लांट दैट ग्रोस इनटू ए न्यू प्लांट। सो हियर ग्रीन पोर्शन इज द बेबी प्लांट, सो जिससे न्यू प्लांट ग्रो करता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज try it yourself. Take a rajma seed, soak it in water for 2 to 3 hours. The outer seed coat becomes soft. Remove it. Locate the cotyledons and the embryo. बच्चा यहाँ पे फिर आपके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है और इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपने राजमा सीड लेना है और उसको वाटर में सोक करके रखना है। सोक मीन्स भिगो के रखना है। कितने टाइम के लिए? 2 to 3 आवर्स के लिए। जब आप उसको पानी में भिगो के रखोगे तो क्या होगा? जो उसका जो आउटर सीड कोट होगा ना वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। जब सॉफ्ट हो जाएगा ना तो आप आसानी से उसे रिमूव कर देना, तो आपको उसके अंदर ना कोटिलिडन्स दिखेंगी। जो उसका वाइट वाइट पोर्शन होगा दो, वो क्या होगी? उसकी कोटिलिडन्स, और उसके साथ एक छोटा सा एम्ब्रियो पड़ा होगा, ठीक है। सो पहले जब आप राजमा सीड को लोगे ना, पहले उसका जो आउटर ब्राउन सा जो कवर होगा ना वो पहले क्या होगा? हार्ड होगा। लेकिन जब आप उसे वाटर में सोक कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? सॉफ्ट। सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स द काइंड ऑफ सीड। अब सीड भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। सीड्स की 2 टाइप्स हैं हमारे पास। वन इज द मोनोकोट सीड, सेकेंड इज द डाइकोट सीड। सो मोनो मीन्स MONO मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ओके। सो मोनो मीन्स 1 कोट, डाई मीन्स 2 कोट। इट मीन्स मोनोकोट सीड्स आर दोज विच हैव ओनली 1 कोटिलिडन्स, ओके, जिनके पास सिर्फ एक ही सीड लीफ है, ठीक है, जिनके पास एक ही सीड लीफ है, वो क्या होगा? मोनोकोट सीड्स। और डाइकोट सीड्स मीन्स डाई मीन्स 2 मीन्स सीड्स दैट हैव 2 कोटिलिडन्स, ओके, दैट आर कॉल्ड डाइकोट सीड्स। अब हमने एग्जाम्पल्स करनी है कौन किन किन की? बट एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोकोट सीड्स एंड सेकेंड इज द डाइकोट सीड्स। एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट सीड्स आर वीट, मेज, राइस एटसेट्रा। इन सभी में कितने कोटिलिडन्स होते हैं? ओनली 1। एंड द डाइकोट्स आर बीन, पी, ग्राम एटसेट्रा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द
Germination. What is that? Germination. Let's read about this. When the seeds get enough air, water and warmth, they grow into a new plant. This process is called germination. अब पहले मुझे आप बताओ, क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे जब हम सीड को प्लांट करते हैं सोइल में तो उसे बेबी प्लांट ग्रो करता है। हमने यहाँ पे रीड भी कर लिया कि सीड के अंदर एक छोटा सा बेबी प्लांट होता है जिसको हम क्या बोलते थे? एम्ब्रियो। तो क्या जो हमारे भी अगर राजमा एक सीड है तो उसके अंदर भी एक बेबी प्लांट होगा। तो जो भी सीड हमारी किचन में पड़े हुए हैं तो वो ग्रो क्यों नहीं करते, उनमें से न्यू प्लांट क्यों नहीं निकलता? क्यों नहीं निकलता बच्चा? क्योंकि तब सीड को ये वाली कंडीशंस नहीं मिलती। कौन कौन सी? एयर, वाटर एंड वार्म। जब तक सीड को ये तीनों चीज़ें एक साथ नहीं मिलेंगी तब तक वो सीड ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है। और जर्मिनेशन क्या है? जब सीड को ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी और उसमें से एक न्यू प्लांट निकल जाएगा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? जर्मिनेशन। ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब हम इसमें पढ़ेंगे कि जर्मिनेशन जब होती है, जब सीड में से एक न्यू प्लांट ग्रो करता है तो कैसे ग्रो करता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है। ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इज द सीड अब्जॉर्ब्स वाटर एंड स्वेल्स अप, इट्स सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। क्या होता है? पहले सीड वाटर को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है। वाटर को अब्जॉर्ब करने के बाद वो थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। जब वो स्वेल करेगा और उसका जो सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। तभी जब भी मम्मा राजमा सीड्स होते हैं जो रात को सोक करके रखते हैं, ठीक है, जब आप सुबह उन्हें देखोगे ना वो सभी स्वेल्स हुए होते हैं और उनका जो ब्राउन ब्राउन पोर्शन होता है वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है। सेम वे जब भी हम सीड को वाटर में सोक करेंगे वो वाटर को अब्जॉर्ब करके और उनका सीड कोट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। The cells of embryo start dividing as they get air, water and nutrients. This make the baby plant inside the seed grow. This result in the breaking of the seed coat. अब क्या होगा? देखो ये जो सीड कोट था, जब हमने इस सीड को वाटर में सोक कर दिया पूरी रात तो ये सीड कोट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट हो जाएगा। और जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो को सारी कंडीशंस मिल गई, वाटर भी मिल गई, एयर भी मिल गया और वार्मथ मिल गई। अब ये एम्ब्रियो ना धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा। जब ये एम्ब्रियो ग्रो करके स्ट्रेट होना शुरू करेगा तो ये जो सीड कोट है जो तो पहले ही सॉफ्ट हुआ है, तो अब इसके बाद जब ये प्लांट ग्रो करेगा तो ये सीड कोट क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। Now the root starts growing in the downward direction and is called a radicle. जब प्लांट ग्रो करेगा तो सबसे पहले उसकी क्या ग्रो करेंगी? क्या आएंगी? रूट्स। ठीक है। तो रूट्स किस डायरेक्शन में ग्रो करेंगी? डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, सोइल की तरफ ग्रो करेंगी। लेकिन इन रूट्स को हम सबसे पहले क्या बोलेंगे? रेडिकल। वी विल कॉल्ड इट रेडिकल। सेकेंड इज द बेबी शूट स्टार्ट्स ग्रोइंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड इज कॉल्ड प्लूम्यूल।